फौजे उर्दू कहती है बढ़कर बार बार, कसरत फौजे उर्दू कहती है बढ़कर बार बार, पर सरे नोके सिना एक लश्कर है हुसैन, पर सरे नोके सिना एक लश्कर है हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए आकर जरा करबो बला में है खलील, देखिए आकर जरा करबो बला में है खलील, मर मिटा वादे पे अपने वो दिलावर है हुसैन, मर मिटा वादे पे अपने वो दिलावर है हुसैन। आज भी देते हैं हमको आप दाना शाहिदी, आज भी देते हैं हमको आप दाना शाहिदी, ऐसे दौलतमंद है इतने तवंगर है हुसैन, ऐसे दौलतमंद है इतने तवंगर है हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जगमगाती है शरीयत नूर में किसके दिया, जगमगाती है शरीयत नूर में किसके दिया, आसमाने दीन का वो शम्सो मुनव्वर है हुसैन, आसमानो दीन का वो शम्सो मुनव्वर है हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। یہ بھی اثر حسین تیرے نام کا ہوا، ضامن میری نجات کا عشق عطا ہوا، چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے، چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے، چہرہ ہر ایک شخص کا خدائی نہ ہوا، چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے، چہرہ ہر ایک شخص کا خدائی نہ ہوا، تاعمر کی بطول کے دشمن پر لعنتیں، تاعمر کی بطول کے دشمن پر لعنتیں، یا یوں کہوں کچھ اجر رسالت ادا ہوا، تاعمر کی بطول کے دشمن پر لعنتیں،
या यूं कहूँ कुछ अजर रिसालत अदा हुआ। बातिल शियार कौन है और कौन हक पसंद, फर्शे अदा बिछाया तो ये फैसला हुआ। बातिल शियार कौन है और कौन हक पसंद, फर्शे अदा बिछाया तो ये फैसला हुआ। कुछ दूर चल के मातम शह के जुलूस में मैं भी शरीक बद में सफ़े अख्तिया हुआ। शेर समाप्त फरमाएं, पेश कर रहा हूँ कि इश्क़े अली ने मुझको भी जन्नत में घर दिया। अकीदत का शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कि इश्क़े अली ने मुझको भी जन्नत में घर दिया, सलमान के मकान से बिल्कुल मिला हुआ। इश्क़े अली ने मुझको भी जन्नत में घर दिया, सलमान के मकान से बिल्कुल मिला हुआ। इन्हीं मित्रों के ज़हन में मैं इंतहाई अदब और एहतराम से खतीब एहसन, खतीब बेनज़ीर, खतीब अज़ीज़ आली जनाब मौलाना आरिफ साहब के आए बाद मौलाना अपने मुँह और नूर बयान से मुमीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। इनके इस्तेक़बाल में आके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
واحد امام ہے جو ایران میں دفن ہے، ایک واحد امام. تو بھائی سوال یہاں ہوتا ہے نا کہ ایسی کیا بات تھی کہ خاندان یہاں ہے، یہ ایک شخص وہاں پہ ہے، کہ بھائی یہاں پہ یہ نہیں امام اپنی مرضی سے نہیں گیا ہے، امام کو لایا گیا، امام کو بلوایا گیا تھا، مامون رشید نے بلوایا تھا. لیکن اس وقت جو تھا کہ بھائی تب تو تاج کا بھی معاملہ چل رہا تھا. ادھر امام امامت کے اس پہ آئے، عہدے پہ آئے، اور امام کی جو امامت تھی، امام کی فضیلت فضائل کی بہت تیزی سے پھیل رہی تھی. امام کے علم کے بارے میں، معجزات کے بارے میں. امام مدینے میں ہے اس وقت. ادھر جیسے ہی مامون اپنے تخت پہ آیا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا، وہ جو مشورہ دیتا تھا، جس کا نام تھا فضل بن ربیع. اس نے اس کو بلایا، کہنے لگا کہ بھائی تخت مل گیا، تاج مل گیا، حکومت مل گئی، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے میری حکومت کو خطرہ ہے. فضل بن ربیع چالاک تھا، اس نے سوچ کے کہا کہ تین لوگوں سے خطرہ ہے. پہلے کون ہے وہ تین لوگ؟ پہلے پہلا تمہارا بھائی امین، اس سے تمہاری حکومت کو خطرہ ہے. وہ کہنے لگے بھائی بے وقوف ہے، میں اس کو قتل کروا دوں گا. تو کہنے لگے دوسرا کون ہے؟ کہنے لگے امین کا وزیر ہے، آپ کے بھائی کا وزیر ہے، اس سے خطرہ ہے آپ کی حکومت کو. مامون کہنے لگا اس کو بھی میں قتل کروا دوں گا. فضل بن ربیع کہنے لگا تیسری شخصیت جو ہے وہ علی رضا ہے، وہ شیعوں کا امام ہے. مامون کہنے لگا میں نے آج تک اس کا نام نہیں سنا، یہ کون ہے؟ یہاں کا تو رہنے والا نہیں ہے. فضل بن ربیع کہنے لگا کہ یہاں نہیں، مدینے میں رہتا ہے. مامون کہنے لگا میں یہاں، وہ مدینے میں، کہاں سے بھائی مجھے خطرہ ہو جائے گا میری حکومت کو. فضل بن ربیع کہنے لگا کہ یہ مت سوچو کہ اگر دوری ہے تو تمہاری حکومت کا خطرہ نہیں ہوگا. کیوں خطرہ ہوگا؟ فضل بن ربیع یہاں جملہ کہتا ہے کہ یہ جس تخت پہ تم بیٹھے ہو یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جملے پہ جائیے. فضل بن ربیع کہنے لگا مامون سے کہ جس تخت پہ بیٹھے ہو وہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ انہی کا حق ہے. کیا کہنا؟ جس پہ تم نے قبضہ کر کے، جس پہ تم قبضہ کر کے بیٹھے ہو وہ اہل بیت کا حق ہے، وہ ان کا حق ہے. اب جیسے یہ کہنا تھا، مامون کہنے لگا میں 3 سوال پوچھتا ہوں، مجھے ان 3 سوالوں کا جواب دے دو تاکہ مجھے پتہ لگے میرا دشمن جو ہے کتنا طاقتور ہے، اس کا معیار کہاں کتنا بلند ہے. جیسے یہ کہا فضل بن ربیع نے کہا سوال کرو. مامون نے پہلا سوال کرا، کہا مجھے یہ بتاؤ وہ کس خاندان سے ہے. فضل بن ربیع کہنے لگا وہ اس خاندان سے ہے جس سے اونچا کوئی خاندان ہی نہیں ہے. کیا بات؟ جس سے اونچا کوئی خاندان نہیں ہے. مامون نے کہا ان کے خاندان سے اونچا کوئی خاندان نہیں ہے. کہا جی بالکل. کہنے لگا یہ بتاؤ ان کا علم کا کیا ہے، ان کے علم کا معیار کتنا ہے. اب جیسے یہ کہہ رہا تھا فضل بن ربیع کہنے لگا ان کے علم کا معیار اتنا ہے کہ انہوں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو پتہ ہی نہیں. کیا بات؟ ان کے علم کا یہ معیار ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. مامون بولے خاموش رہا. کہنے لگا اچھا یہ بتا دو دکھائی کیسے دیتے ہیں، نظر کیسے آتے ہیں. فضل بن ربیع کہنے لگے دکھائی تو ایسے دیتے ہیں جو انہیں ایک بار دیکھ لیتا ہے تو انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. کیا کہنا؟ جو انہیں ایک بار دیکھ لیتا ہے تو انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. تو مامون نے یہ سنا کہ اتنا طاقتور دشمن ہے، ایسا بلند ہے مرتبہ. مامون نے کہا فوراً رضا کو مشہد بلایا جائے. اس نے چند سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ رضا کو لے آؤ مشہد میں. اب جیسے یہ حکم دیا وہ لوگ نکلے تھے، مامون نے پیچھے پیچھے پھر کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ تم پہلے والوں کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہہ دو کہ جب وہ رضا کو لینے جائیں اور لے کر واپس آئیں تو رضا کو گھوڑے پہ نہ بیٹھا لے، رضا کو گھوڑے پہ نہ بیٹھا لے، ان کو اماری پہ بیٹھا لے اور پردے کا اہتمام کر کے لائیں گے. جیسے سنت فضل بن ربیع کہنے لگا بھائی گھوڑے میں کیا ہے، اسی پہ بیٹھا کے لے آئے. یہ اماری کا اہتمام کیوں کرنا ہے، یہ پردے کا اہتمام کیوں کرنا ہے. اب جیسے یہ کہا مامون کہنے لگے فضل بن ربیع تو نے ہی تو کہا ہے جو ان کو دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. مجھے ڈر ہے کہ میں جتنے سپاہیوں کو بھیجوں وہ مشہد آنے سے پہلے ہی شیعہ نہ ہو جائے. جملے میں جیسے ہی کہا تو فضل بن ربیع کہنے لگا کہ بات میں دم تو ہے، اگر گھوڑے پہ بیٹھا کے لائیں گے جہاں جہاں سے ہی گزریں گے وہاں وہاں لوگ انڈیو ہو جائیں گے. اب وہاں پہ جیسے ہی علی سپاہی پہنچے کہنے لگے آپ کو مامون
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اور وہاں پہ یہ سب پہنچے. جیسے امام کے پاس آئے، امام مسجد میں تھے، امام نے اس کو کچھ نہیں کہا. امام نے مسجد کا جاؤ تیاری کرو، سواری کی تیاری کرو، میں آتا ہوں. امام آیا اپنے گھر، بڑی ناشوں کو اکٹھا کرا، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کہنے لگے سنو، میں جا رہا ہوں مشرق اور میں اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں. ویسے اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں جیسے میرے جد علی نے چھوڑا اور میرے جد حسین نے چھوڑا. میرا جد علی مدینہ چھوڑ کے گیا تو واپس نہیں آیا، میرا جد حسین مدینہ چھوڑ کے گیا تو وہ بھی واپس نہیں آیا، تو میرا بھی آنا مشکل ہے. جیسے یہ کہا میرے پروگرام بچ گیا. سب انہوں نے بھی کرے کہ امام کی واپسی نہیں ہے. امام نے کہا ابھی نہیں، میں جا کے چند عرصے وہاں جیوں گا، اس کے بعد میری شہادت ہوگی. اور یہ یاد رکھنا میری شہادت کی سب سے پہلی خبر میرے بیٹے علی کو ملے گی. اب یہ امام نے کہا، امام نکلے. جیسے ہی امام نکلے سواری میں بیٹھے. اب امام کی سواری چلی. اب سب سے سنا ہوگا آپ نے کہ امام جو مشہد ہے، مشہد سے 100 کلومیٹر پہلے ہے نشاپور. نشاپور وہ جگہ ہے جہاں آج بھی امام کے قدموں کے نشان ہیں. یہی تو فرق ہے عام انسان میں اور امام میں کہ ہمارا نشان آتا بھی ہے تو مٹی پہ آتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے امام پتھر پہ اترے تھے تب بھی نشان آ گیا اور صدیوں کے لیے. اب وہاں تو جیسے ہی نشاپور میں امام کی سواری پہنچی. اب یہاں پہ کیا ہے، حکومت نے نہیں اعلان کرا ہے کہ کون آ رہا ہے. وہاں پہ ایک دم خفیہ طریقے سے امام کو لایا جا رہا ہے. لیکن نشاپور میں کیا ماحول ہے، نشاپور میں 16,000 راوی امام کا انتظار کر رہے ہیں قلم لے کر. امام کچھ بولے اور ہم لکھے. اب جیسے ہی نشاپور میں امام کی سواری پہنچی، ان لوگوں نے سواری کو روکا. اندر سے آواز ہے امام نے کیوں روکا ہے. اب جیسے یہ کہا تو امام وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے سنا، ہم جانتے ہیں کہ ایران کی ایک شہزادی عراق شادی کر کے گئی تھی جس کا نام تھا شہر بانو. اس کا عقد ہوا تھا رسول کے نواسے حسین سے، اور ہمیں یہ پتہ لگا کہ آپ انہی کی نسل سے ہیں، تو آپ فرزند رسول ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایک ایسی حدیث ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں اور اپنے بستی میں جب جائیں تو سب کو دکھائیں کہ یہ ہم فرزند رسول سے حدیث لے کر آئے ہیں. اب سب دیکھ رہے ہیں محفل کی طرف، ہماری کی طرف کا چہرہ ہے. امام نے جیسے ہی پردے کو ہٹایا، جیسے ہی سب نے عید اللہ کے کھولنے کے چہرے کو دیکھا، سب کی زبان سے ایک جملہ نکلا، سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ، مرحبا. جیسے ہی جملہ نکلنا تھا امام نے پوچھا کیا چاہتے ہو. پہلے ایک حدیث ہم کو بتا دیے. امام نے ایک جملہ عرض کرا کہ لا الہ الا اللہ، جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے ایک الہ ہے. جملے میں لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. جو اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے نجات پا جاتا ہے. امام نے پردہ بند کرا، سواری آگے بڑھی. اب سب نے دوسرے کو اونی ماری، میں بھی لا الہ پڑھتا ہوں، تم بھی لا الہ پڑھتے ہو، یہ بھی لا الہ پڑھتے ہیں، سب بچ گئے، سب کو نجات مل جائے گی. بھائی سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو کوئی دوزخ میں جائے گا نہیں، سب کی نجات ہو جائے گی. اب جیسے ہی امام کے کانوں میں آواز گئی، امام نے حکم دیا کہ اماری کو روکو. جیسے ہی اونٹ روکا گیا، امام نے پردہ ہٹایا، پیچھے مڑ کے کہا، کہنے لگے میں نے یہ تو کہہ دیا کہ جو لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا تو وہ نجات پا گیا. لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے اہل بیت. اگر اہل بیت کی ولایت کو نہ مانا، اتنا سر جگہ پہ سر ٹھوک لو، تمہاری نجات نہیں ہونے والی ہے. امام نے کہا کہ تم کچھ کر لو، روزے رکھ لو، حج پہ چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، اگر روزے اہل بیت میں ہے، اہل بیت کی ولایت نہیں ہے تو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. امام نے کیا کس کہیں. اب امام کی سواری آگے بڑھی. امام کی سواری ایسی آگے بڑھنی آئی مشہد. مشہد میں اعلان نہیں ہے کون آ رہا ہے، صرف امام کو چاہنے والوں کو پتا ہے کون آ رہا ہے. اب جیسے ہی وہاں پہ امام گئے، مامون جو تھا دربار میں پہنتا تھا سیاہ لباس کالا. اس کو خوش کرنے کے لیے سارے درباری جو تھے وہ کالا لباس پہنتے تھے، اور جتنے لوگ آتے تھے مشہد وہ بھی کالا لباس پہنتے. کیوں؟ مامون کو خوش کرنے کے لیے. لیکن جس دن امام آئے ہیں دربار میں،
जैसे ही इमाम ने पहला कदम उठाया है, मामून ने गौर करके देखा कि मेरे और फजल बिन रबी के अलावा सारे लोग हरा कपड़ा पहन के खड़े हैं। जुमले पे नहीं करे, सब लोग अभी तक काला लिबास पहन रहे थे। जैसे ही इमाम दरबार में आए, सबका लिबास तब्दील हो गया, सब हरे लिबास में आ गए। मामून ने फजल बिन रबी को देखा, कहने लगे अभी तक तो सब काला लिबास पहनते थे, इसका पहला दिन है आज दरबार में और सब हरा लिबास पहनने लगे। फजल बिन रबी कहने लगा मैं भी यही सोच रहा हूँ, अभी इसने कुछ बोला नहीं है, अभी इसने खिताब नहीं करा है, तो बिना खिताब करे इसने सबके लिबास तब्दील करा दिए। अगर ये बोल देगा तो ज़हन तब्दील करा देगा, ज़हनियत तब्दील करा देगा, अकीदा तब्दील करा देगा। अगर इसने खिताब कर लिया सबका अकीदा बदलवा देगा। इमाम आए, मामून कहने लगा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हुकूमत में वली अहद के ओहदे पे आ जाएं। इमाम ने उस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए उसको कबूल करा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ज़हन है वो एक आम ज़हन है और छोटा सा है, पर अगर हम ये चाहें कि जो इमाम कर रहे हैं वो हमको समझ में आए, वैसा नहीं हो सकता कि इमाम के लदुन्नी के वादे से रसूल की ज़ुबान चूसी इमाम ने, तो जो इमाम करेंगे हमें वो तो नहीं समझ में आएगा। इमाम ने उस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, मौके को देखते हुए इमाम ने वली अहद के ओहदे को कबूल कर लिया। अब वहाँ पे क्या था कि इमाम ने वली अहद के ओहदे को कबूल करा। अब चाहने वाले आने लगे मामून की जगह इमाम के पास, चाहने वालों को देखते हुए बाकी मशहब के लोग पहुँचने लगे इमाम के पास। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इमाम की बातों को देखते हुए, भाई इमाम डायरेक्टली नहीं आ सकते मिंबर पे और आके कहते कि भाई ये जालिम है, एक हुकूमत उसकी थी, इमाम फौरन आके नहीं कह सकते थे। अब इमाम ने अपनी बातों में बताना शुरू करा, तो लोगों के समझ में आने लगा कि जो हुकूमत है वो इमाम को पसंद नहीं करती है, इमाम के खिलाफ है, इमाम को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब जैसे ये सुना, फौरन मामून ने फजल बिन रबी को बुलाया, कहने भाई इधर आओ, यहाँ ये सब अफवाहें हो रही हैं कि भाई हम ये लोग सोच रहे हैं कि हम इमाम से नफरत करते हैं, हम इमाम को नहीं चाहते हैं, हम उनके दुश्मन हैं, ऐसी कोई चीज़ बताओ कि जिससे ये साबित हो जाए कि हम इमाम के साथ हैं। तो फजल बिन रबी कहने लगा भाई इमाम के नाम का सिक्का शुरू करा दो, 8वें इमाम के नाम का सिक्का शुरू करा दो। और ये वाहिद इमाम था कि जिसके नाम का सिक्का चला। आप करबला जाएंगे सिक्का लेके नहीं आते हैं, नजब जाएंगे सिक्का लेके नहीं आते हैं, मशहद जाएंगे तो कार्ड में चिपका हुआ सिक्का लेकर आएंगे, वो उसी सिक्के की शबीह है। तो मामून ने सिक्के पे लिखवाया अर्रज़ा मिन आले मोहम्मद, आगे बढ़िए, क्या लिखवाया अर्रज़ा मिन आले मोहम्मद। अब ये सिक्के बनाने का हुक्म दिया गया, मामून ने हुक्म दिया, सिक्के बन गया है, अब उसको मार्केट में आम कर दिया गया, बांट दिया गया सबको। अब जैसे ये बांटा गया, 3 दिन गुजरने के बाद मामून ने फजल बिन रबी को बुलाया, कहने लगे भाई अब जाओ देखो मार्केट का क्या माहौल है, भाई लोग तो हमारे फेवर में आ गए होंगे, भाई हुकूमत हमारी है, तख्त हमारा है, ताज मेरा है, लेकिन तब भी करेंसी उनके नाम की चल रही है, तो लोगों को तो यही सोचना चाहिए कि हम इमाम के साथ में हैं। फजल बिन रबी कहने लगे ठीक है, 3 दिन का वक्त दिए, मैं बाजार का मुआयना करके आता हूँ, आपको बताता हूँ। फजल बिन रबी गया, 3 दिन बाद लौटा, मामून ने पूछा क्या माहौल है। जो फजल बिन रबी ने जुमला कहा है उससे हुकूमत हिल गई थी। क्या मामून कह रहे हैं क्या हुआ भाई, लोग हमारी तरफ आए कि नहीं आए। फजल बिन रबी कहने लगा मुझे उसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अभी तक हुकूमत का सिक्का था, अब सिक्के की हुकूमत है। फजल बिन रबी कहने लगा अभी तक हुकूमत का सिक्का था, अब सिक्के की हुकूमत है। मामून ये सुन के डर गया, भाई अब ये क्या हो गया। कहना क्या माहौल है बाजार में। कहने लगा फजल बिन रबी की जब मैं बाजार गया, मैंने कुछ चीजों को देखा कि कोई भी शख्स आता है दुकान पे सामान लेने के लिए, दुकानदार पहले पूछता है ये बता हुकूमत वाला लाया है या इमामत वाला लाया है। क्या करना, हुकूमत वाला लाया है या इमामत वाला लाया है। अगर वो कहता था कि मैं हुकूमत वाला लाया, वो कहता था देख दर, वो देता था सिक्का, गले में डालता था, जितना सामान चाहिए होता था उतना देता था, जितना चाहिए होता था उतना देता था। अब जैसे ये सुना, फौरन मामून ने कहा अच्छा ये बता अगर वो ये कह दे कि इमामत वाला लाया हूँ तो क्या होता था। कहने लगा कि कोई ये कह दे कि मैं इमामत वाला सिक्का लाया हूँ, दुकानदार कहता था थोड़ी देर रुक जाओ,
मुझे वजू करके आने दो। दुकानदार जाता था अंदर, वजू करके आता था, अपने हाथों को फैलाता था, कहता था सिक्का इसमें डाल दे, सिक्का इसमें रख के सिक्के को अपने सीने पे लगाता था। कहने लगा मेरी दुकान में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस सिक्के की कीमत के बराबर हो, तो मेरी दुकान हाजिर है, जो चाहिए ले जाओ इस दुकान से। क्या कहना बहुत अली लूटना नहीं सिखाता, लुटाना सिखाता है। अली जो है किसी को लूटना नहीं सिखाता है, दोनों हाथों से लुटाना सिखाता है। जैसे ये कहा फजर में नबी कहने लगा जितनी जल्दी हो सके सिक्का रुकवा लो। जिस गली में तुम्हारा सिक्का जब तक चलेगा उस घर से तुम्हारे लिए लानत निकलेगी। जैसे ये मामलों ने सुना, लेकिन करेंसी चलाना बहुत आसान है, रोकना बहुत मुश्किल है। वो भी उस जमाने में, ये आज का दौर है ना कि 8 बजे आ गए तो कहते हैं कि 12 बजे से नोटें बंद। ये वहाँ तो माहौल नहीं है, वहाँ तो सोशल मीडिया भी नहीं था, कैसे बताएं करेंसी बंद हो गई। मामू ने ऐलान करवाया फजल नबी से कि जाओ सबसे कह दो कि 3 दिन का मौका दिया है, हर चौराहे पे एक तख्त रखा हुआ है, जिसके पास सिक्के हैं वो ला के उसमें दे दे। 3 दिन के बाद अगर किसी के पास से, किसी के पर्स से, किसी के घर से, किसी की दुकान से, किसी के भी पास से अगर इमाम रजा का सिक्का मिल गया तो कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधे सर और कलम कर दिया जाएगा। इमाम ने ऐलान करवाया। पहले दिन सिपाहियों को भेजा और तख्त के साथ भेजा, जाओ चौराहे पे। पहला दिन गुजरा, जैसे गुजरना था फजर नबी को बुलाया, मामू ने कहा सिक्के आए, पहले हुजूर सिपाही को आए, तख्त को आए, लेकिन सिक्के नहीं आए। अब जैसे चलो ठीक है, 2 दिन का मौका है, 2 दिन का वक्त है। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन सिपाहियों को भेजा, तो कहा अब सिक्के आए। कहा हुजूर सिपाही तो आए हैं, इस बार ना सिक्के आए हैं ना तख्त आए हैं। जैसे ये कहा मामू कहने लगा ठीक है भाई, 1 दिन की मोहलत बहुत होती है सिक्के जमा करने के लिए, सिक्के ला के रख ली तो है, 1 दिन का मौका बहुत है। आखिरी दिन आया, तीसरे दिन जैसे ही गुजरा, महमूद पूछने लगा सिक्के आए? कहने लगे हुजूर इस बार तो ना सिपाही है, ना तख्त है और ना सिक्के हैं। मामूद कहने लगा ये क्या हो रहा है भाई, ना किसी के घर में सिक्के हैं, ना किसी के गले में सिक्के हैं, ना किसी के पास सिक्के हैं, ना किसी की दुकान में सिक्के हैं। सिक्के गए तो गए कहाँ भाई? ना मार्केट में सिक्के, ना किसी घर और दुकान में सिक्के, भाई जा कहाँ रहे हैं? फजल बिन नबी कह रहा सिक्के इकट्ठा हो रहे हैं मगर सिक्के वाले के पास। मामू ने जैसे ये ऐलान करवाया था कि जो भी जिसके पास इमाम का सिक्का मिलेगा तो उसका सर उड़ा दिया जाएगा 3 दिन बाद। अब जैसे ही सुना था सारे चाहने वाले सिक्कों को लेकर इमाम के पास लगा, इमाम ये लिए सिक्के, इमाम ये लिए सिक्के। इमाम कहने लगे भाई मुझे जरूरत नहीं है, मैंने मांगा नहीं तुम लोगों से। कहने लगे मौला हम दे नहीं रहे, बस हमें ये बताइए आपको पता है कि मामू ने क्या ऐलान करके रखा हुआ है? इमाम तो जानते थे क्या मामला चल रहा है। इमाम बैठे मिंबर पे, इमाम ने कहा सब बैठो मेरे साथ। सब बैठे, जैसे ही बैठना था इमाम कहने लगे अब बताओ मामू ने क्या ऐलान करा है? कहने लगे भाई मामू ने ये ऐलान करा है कि 3 दिन के पास, और आज तीसरा दिन है, और जिसके पास भी आपके नाम का सिक्का मिल गया उसका सरवा दिया जाएगा। अब मुझे हम लोग को ये बताइए हम सिक्के लेके जाएं तो जाए कहाँ? इमाम मिंबर से उतरे, इमाम ने कहा सिक्के रखो। अब इमाम के हुआ था,
इधर एक बना हुआ था पटका, इमाम ने पटके को उतारा और उससे पतली पतली पट्टियां मारना शुरू करी। जैसे ही पट्टियां बना ली इमाम ने, अब इधर सिक्के हैं, दरमियान में सिक्के वाला है, इधर पट्टियां हैं। फिर सुनिए, इधर सिक्के हैं, इधर सिक्के वाला है, इधर पट्टियां हैं। सबकी तवज्जो इधर रहे तवज्जो। अब वहां पे क्या हुआ, इमाम कहने लगे सब सिक्के इकट्ठा हुए। इमाम एक सिक्का उठाते थे, पट्टी में रखते थे, एक गांठ बांध देते थे, गांठ बांधते थे, किनारे रखते जाते थे। इमाम सिक्का उठाते थे, लत्तर में रखते थे, गांठ बांधते थे, किनारे डाल देते थे। करते करते जब सारे सिक्के बंद गए पट्टी में, इमाम फिर मिंबर पे आए। अब इमाम ने ऐलान करना शुरू करा, फला इब्ने फला आ सिक्का ले जा, फला इब्ने फला आ सिक्का ले जा। अब जिसके सामने इब्ने फला नहीं आया, उसको सिक्के नहीं मिले। अब जैसे ये करना शुरू करा, सबको सिक्के तकसीम हो गए। सिक्के तकसीम होने के बाद इमाम ने कहा सबको सिक्के मिले। सबने कहा जी मौला। इमाम ने कहा सब हाथों में बुलंद करो। सबने सिक्कों को हाथों में बुलंद करा। इधर एक पट्टी का सिरा इधर से निकला, दूसरी पट्टी का सिरा इधर से निकला, दरमियान में सिक्का था। अब इमाम के जैसे ही इमाम ने कहा सिक्के के लिए हाथ उठाओ, सबने हाथ उठाया। अब लोग कहने लगे कि मौला सिक्का तो आपने दे दिया, अब ये बताइए अब हम लोग क्या करें, कहाँ बहाएं, कहाँ दफनाएं, कहाँ दबाएं, कहाँ छुपाएं। अब तो हम लोग को बता दिए भाई कहाँ हम लोग छुपाएं। इमाम कहने कहीं छुपाने की जरूरत नहीं है, न दफनाने की जरूरत है, न बहाने की जरूरत है, न दबाने की जरूरत है। बस अपने दाएं बाजू पे बांध लेना। क्या बात है, अपने दाएं बाजू पे बांध लेना। अब उसमें से एक शख्स खड़ा हो कह लेगा मौला मामून का ऐलान नहीं सुना है कि वो कह रहा है जिसके पास से मिला उसका सर कलम कर देंगे। अब वहां पे हम लोग छुपाने की बात कर रहे हैं और अब आप कह रहे सरेआम बाजू पे लगा के घूमो। इमाम कहने लगे ये आज की बात नहीं है, ता कयामत तक कोई भी जो भी सिक्का हमसे मंसूब कर देगा और अपने बाजू पे बांध लेगा वो इमाम ज़ामिन बन जाएगा। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अब वहाँ पे भाई लोग ये कहते हैं भाई आपने ये सब चीजें, कहने वाले हर चीज कह जाते हैं भैया ये सब चीजें आपने खुद भर्ती करी है इस्लाम पे, इमामों से नहीं आई हैं। अब मैं पहले कहूँ शियों में जितनी चीजें आई हैं कोई भर्ती की चीजें नहीं है, सब इमामों ने बताया है, सब इमामों ने बताया है। भाई तुम क्या बताओगे, तुमको तो इमाम भी नहीं मिला। क्या बात है, अगर तुमको इमाम मिल जाता तो मौलवी साहब के ख्वाब में यजीद ना आता। अगर तुमको इमाम मिल जाता मौलवी साहब की यजीद में ख्वाब में यजीद ना आता। अब भाई सबसे पहली बात है यजीद ख्वाब में है तो पहचाना कैसे, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि आपने देखा था यजीद। भाई उन्होंने एक दिन यजीद देखा, वो भी ख्वाब में यजीद देखा। हम तो न जाने दिन में कितनी बार यजीदों को देखते हैं, चलते फिरते यजीदों को देखते, तब तो हम लोग ने कुछ नहीं कहा। कह रहे भाई कौन यजीद, हाँ है यजीद अभी, भाई जो शराब पिए वो यजीद, जो जुआ खेले वो यजीद, जो नाच देखे वो यजीद, जो मदरसे से खेले वो यजीद, जो इस्लाम को पामाल करे वो यजीद। भाई हम तो नहीं सारे यजीदों को देखते, तब तो हमने कुछ नहीं कहा कि आज हम किस यजीद से मिल के आए हैं। और भाई उन्होंने ये कहा कि भाई किताबों की बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल में ये सब कुछ नहीं है। मुझे एक हिसाब से बताइए सिक्का असर कर रहा है, आप बताइए सिक्का आज तक असर कर रहा है, करेगा। इमाम की ये एहतियात से जुड़ा कहा जो भी सिक्का हो, सिर्फ ये सिक्का नहीं कोई भी सिक्का हो हमसे मंसूब करो, तो ये साबित कर दिया कि मंसूब करना तुम्हारा काम है, असर देना हमारा काम है। इमाम ज़ामिन मंसूब हम लोग करते हैं, असर वो देते हैं। गहवारा हम लोग सजाते हैं, असर वो देते हैं। ताबूत की शबीह हम लोग बनाते हैं, असर वो देते हैं। अलग हम बनाते हैं, असर वो देते हैं। जरिया आप बनाते हैं, असर वो देते हैं। इमाम ने कहा तुम मंसूब करो, असर देना हमारा काम है। ये कमालात के इमाम। बस एक वाक़या और है, फिर मजलिस तमाम करूंगा मैं अपनी, वक्त करीब में पहुंच रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या था कि जब
मामून कह रहा अब तो ताकत गया, समझ लो गया मेरे हाथ से। मामून ने फजल बिन नबी को बुलाया, कहना भाई ये बताओ अब क्या करा जाए, सिक्का अब क्या भाई, सिक्का तो भाई फ्लॉप हो गया सिक्के वाला लोगों ने कहा, अब बताओ आगे क्या करा जाए। फजल बिन नबी कहना एक आखिरी रास्ता ये है कि इमाम को कत्ल कराओ। कैसे कत्ल करना है भाई, अगर सबको पता चले भाई हम लोग को ऐसे कत्ल करना है इमाम को कि इमाम कत्ल भी हो जाए और हुकूमत के दामन पे कोई दाग भी ना आए। अब जैसे ही कहा फजल बिन नबी चालाक था, भाई मैं अक्लमंद नहीं कहूँगा, अक्लमंद भी वहाँ आती है जहाँ अली होता है। चालाक भाई करबला में भी 9 लाख आए थे, 9 लाख के 9 लाख चालाक थे, लेकिन एक अक्लमंद था जो इधर आ गया था। तो फजल बिन नबी चालाक था, उसने कहा कि भाई ठीक है तुम एक काम करो, तुम्हारा चिड़ियाघर के वहाँ तुम्हारे किले की जो बनवाए हो तुम वहाँ जाओ, वहाँ इतने पुराने शेर सबको छोड़ दो और नए 10-12 शेरों को लेकर आओ और फिर इमाम को उनको कम से कम 10 से 15 दिन भूखा रखो, फिर इमाम को बुलाओ और फिर ये इमाम से कहो कि भाई इमाम हम लोग को कुछ शेर रखने हैं अपने पास, हम लोग को 2 शेर रखने आ गए 10-12, उनमें से आप बता दिए कौन सा आला नस्ल का है और कौन बुरी नस्ल का है, तो हम लोग उनमें से 2 शेर रख ले जो आला नस्ल के हैं, बाकी सबको जंगल में छोड़ आएंगे। मामून ने सुना, मामून कहने लगा ठीक है भाई तो अच्छा दिया है, बस मैं कहना एक बात का ध्यान रखना कि जब वहाँ पे इमाम दाखिल हो तो पूरी नहीं तो आधी मशद की आवाम वहाँ मौजूद हो। आधी सब अपनी आंखों देखे भाई मामून का कुछ नहीं करा, भाई इमाम का शेरों ने हमला कर दिया, वहाँ पे जैसे तैयारियां शुरू हुई, शेर लाके भूखा रखा गया, दरबारी से कहा गया कि सुनो जैसे ही इमाम अंदर दाखिल हो तो फौरन दरवाजा बंद कर लेना और तब तक ना खोलना जब तक मैं इशारा न कर दूं। इमाम ने कहा, अब उसके बाद ये लोग पहुंचे इमाम के पास कहेंगे कि इमाम हम लोग का कुछ मसला है वो आप आके हल कर दिए, भाई हम 10-12 शेरों को लेकर आए हैं, हमें 2 शेरों को रखना है, उसमें से आप बता दें कौन सा आला नस्ल का है कौन बुरी नस्ल के हैं, तो उसमें से हम 2 को रखेंगे बाकी को छोड़ेंगे। इमाम को जानते हैं नीयत को, इमाम के अंदर की नीयत जानते हैं। इमाम ठीक है, इमाम आए, अब वहाँ पे क्या था, अब अपने ज़हन में सीन बन रही है कि जैसे ही खुला था पूरा वो मैदान, चारों तरफ दीवार थी, दरवाजा जिस तरफ दरवाजा था उसके दोनों तरफ सीढ़ियां गई थी दरवाजे के ऊपर और दरवाजे के ऊपर बना था हुजरा। जैसे ही इमाम नीचे से दाखिल हुए इस तरह से मामून ऊपर गया, इस तरह से फजल बिन नबी ऊपर गया, दोनों ऊपर खड़े होके देख रहे हैं। जैसे ही कहा मामून ने इशारा करा दरवाजा बंद, दूसरा इशारा करा शेरों को छोड़ा गया। अब शेर पे लेटे हुए, जैसे ही इमाम का पहला कदम गया लेटे हुए शेर बैठ गए, इमाम का दूसरा कदम रखना था जो बैठे हुए शेर थे वो खड़े हो गए। अब जैसे ही इमाम पढ़ते रहे उधर तो शेरों ने पढ़ना शुरू करा, इमाम के साथ दौड़ना शुरू करा। मामून ने दूसरी तरफ अपनी निगाहें कर ली, कहने लगा फजल बिन नबी से कि मुझसे ये खूनी मंजर देखा नहीं जाएगा, मुझसे ये खून खराबा देखा नहीं जाएगा, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। अब जैसी थोड़ी देर हो गई फजल बिन नबी ने हिला के कहा कि ओ सुनो नीचे देखो क्या हो रहा है। मामून कहेगा मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं इस खूनी मंजर को देख लूं। फजल बिन नबी कहेगा अरे देख तो सही क्या हुआ है, कहना मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मैं नहीं देखता हूँ, जो होना था हो गया होगा। फिर फजल बिन नबी कहेगा जो तू चाहता था वो नहीं हुआ है, अरे नीचे देख। तो जैसे ही मामून ने नीचे निगाहें डाली देखा बीच में इमाम है, चारों तरफ शेर तवाफ कर रहे हैं। मैं ये कह दूं कि बीच में इमाम का काबा है और शेर तवाफ कर रहे हैं, शेर तवाफ कर। जैसे ही सुना सारे इमाम बैठे शेर के साथ में बैठे, ये सारे शेरों ने इमाम के सामने अपने सर को झुकाया। अब इमाम हर एक शेर के सर पे अपना हाथ फेर रहे हैं। हाथ फेरते फेरते इमाम ने नीचे देखा, ऊपर दरवाजे के ऊपर देखा मामून नीचे आ। अब भाई मामून को आना था नीचे, तो डर के मारे वो और ऊपर चला गया, उसकी रूह और ऊपर चली गई। अब जैसे ही सुना कहने लगा मौला बता देना इशारे से कौन सा शेर अच्छा है, मैं तो यहीं से देख लूंगा। कहने लगा मामून नीचे आ। जैसे ये कहा मामून सीधी उतरा, सीधी बात कर रहा, कहने लगा मौला यहाँ से दिख रहा है, मैं और करीब नहीं आऊंगा। मौला ने कहा और आ गया, वो थोड़ा और आ गया, फिर लोग कहना मौला यहाँ से साफ दिख रहा है, इसके आगे नहीं आऊंगा। इमाम ने कहा और आ गया,
जैसे ही कहा मामून एकदम करीब आया, इमाम ने पहले शेरों को देखा, कहने लगे ये सारे आला नस्ल के हैं, ये सारी अच्छी नस्ल के हैं। फिर मामून की तरफ देख के कहा मामून ये सोच लो कोई भी आए और अगर हमारे दर पे अपना सर झुका दे तो उसकी नस्ल पे कभी शक न करना। जो आए और हमारे दर पे अपने सर को झुका दे उसकी नस्ल पे कभी शक न करना। ये है इमाम का मर्तबा। ये मामून ने क्या सोचा था कि भाई जानवर है, भाई जानवर को क्या पता इमाम किसे कहते हैं। सही कहा था, ना उस दौर के जानवरों को पता था इमाम किसे कहते, ना आज के जानवरों को पता है इमाम किसे कहते। और बात से करूं, उस गाय के 4 पैर वाले जानवरों को नहीं पता था इमाम किसे कहते हैं, उस गाय के 2 पैर वाले जानवरों को नहीं पता इमाम क्या है। अब यहाँ पे इमाम का मतलब है कि इमाम जो है सिर्फ अगर करते हैं नहीं करते, जानवरों की पूरी यहाँ पे ये हुआ कि इमाम एक जगह बैठे हुए थे, इतने में एक शिकारी जो था हिरनी को लेके जा रहा था, ईश्वर लेके जा रहा था कत्ल करने के लिए। इमाम ने हिरनी की तरफ देखा, हिरनी ने इमाम से कुछ कहा, इमाम ने हिरनी से कुछ कहा, फिर शिकारी से इमाम कहने लगे छोड़ दो इसको, कहने लगे छोड़ दो इसको, कहने लगे मौला मैं छोड़ दूंगा कि वापस नहीं आएगी, होने के वजह से ये वापस नहीं आएगी। इमाम कह रहा है मैं जामिन ये वापस आएगी, इसको छोड़ दो। तो कहने लगा मौला ये बताइए उसने क्या आपसे ऐसा ना कि आप मुझसे कह रहे हैं कि छोड़ दो। तो कहने लगे कि उसने मुझसे कहा कि आप फर्जंद रसूल हैं, मेरे जामिन बन जाइए और मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं बस चाहती हूँ कि घर जाऊँ और उनको दूध पिला के फिर मैं वापस आ जाऊँ, वो भूखे होंगे। जैसे ही सुना उसने आजाद कर दी, चली गई। अब वो वापस शिकारी कह रहा है इमाम मैं मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी, भाई वो गई है तो वापस लौट के नहीं आएगी अपने ज़िबा होने के घर से। अब जैसे कहा इमाम कह रहे थे वो आएगी, बेशक वो आएगी, मैं कह रहा हूँ आएगी। अब जैसे ही हुआ शाम हुई, रात आ गई थी, कहने लगा मौला नहीं आएगी वो, चला जाता। इमाम कहने बैठ आएगी वो। देखा रात के अंधेरे में जिस रास्ते से वो गई थी उसी रास्ते से वो वापस चली आ रही है। जैसे ही शिकारी ने उसको पकड़ा, इमाम ने रुको पहले मुझे पूछने दो कि ये इतना देर में क्यों आई है। जैसे ये कहा इमाम ने इतनी पूछा कि ये बताओ इतनी देर में क्यों आई हो। कहने की मौला मैं जब अपने बच्चों के पास होके निकल रही थी तो मैंने देखा कि मेरे कबीले के सारे हिरन और हिरनियां थी सब एक झुंड बना के बैठे हुए हैं, सब एक झुंड बना के बैठे हुए हैं। मैं कहीं पूछा कि ये बताओ ये झुंड क्यों बना हुआ है, तो सब कहने लगे मुहर्रम का चांद नजर और हम फर्जंद रसूल को रोने के लिए आए हैं। मौला मैंने ये सोचा था कि मैं आऊंगी तो ये मुझे कत्ल कर देगा, न जाने अब मुझे कब मौका मिलेगा हुसैन को रोने के लिए। मौला मैं आपके जद पे रोके आई हूँ। अब जैसे ही सुना इमाम ने फौरन दारो कतार रोने लगे। इमाम जब जानवर इमाम का गम मनाते कोई रोने में बोलते नहीं करेगा। हुसैन रसूल को क्या पता किसकी क्या जिंदगी है, मजलिस में कौन जिंदा रहे कौन ना रहे, तो हर मजलिस में बेझिझक होकर हुसैन की मां को गुस्सा लेना है। आज अब आप ये इंसाफ से बताइए, किसी के घर में किसी के भाई का इंतकाल होता है, सारे रिश्तेदार वाले इकट्ठा होते हैं गुस्सा देने के लिए, मिट्टी जब जाती है दफन हो जाती है तो जान पहचान वाले सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, खानदान वाले रुकते हैं कि हम तीजा करके जाएंगे, हम फातिहा करके जाएंगे, सब रुकते हैं। जब फातिहा हो जाता है फिर खानदान वाले भी जाने लगते हैं, रुकती है तो सिर्फ एक गरीब बहन रुकती है। अपने भाई का गम मनाने के लिए सिर्फ एक गरीब एक बहन रुकती है। लोग पूछते हैं ना कि तुम क्यों रुकी हो, तुम भी अपने घर को चली जाओ, कहती है मैं कैसे चली जाऊं, लोग क्या कहेंगे कि अभी भाई का शुरू भी नहीं हुआ है और मैं अपने घर को चली गई। यही तो बात थी, यहाँ एक भाई के इंतकाल पे एक बहन घर छोड़ के नहीं जाती है, चहलुम तक रहती है। मगर हाय में करबला का मंजर, हुसैन का जब हुसैन कत्ल हुए हैं वहाँ तो ज़ैनब का एक भाई तो कत्ल नहीं हुआ था ना, ज़ैनब के ना जाने कितने भाई कत्ल हो चुके थे, सारे भाई कत्ल हो चुके थे। अब ज़ैनब को कोई पुरसा
पुरसा देने तो नहीं आया, जो आ रहा था कभी ज़ैनब को ताशियाने मार रहा था, कभी ज़ैनब के सर से रिदा छीन रहा था, पैरों में आग लगा रहा था। अब यहाँ ये था कि हुसैन का पुरसा लेने के लिए सब आएंगे। अब यहाँ पे ज़ैनब सबसे पुरसा लेगी, लेकिन 11 मुहर्रम की वो तारीख कहानी थी, सारी बहनों के हाथों में रस्सियां बंध गई, सब पे मकनाओ चादर रस्सियों में चपड़ी गई। अब सारी बहनें खड़ी हैं, अब ज़ैनब अपने एक एक भाई को रन में ढूंढ रही है, अपने एक एक भाई को ढूंढ रही है। अब अमारी पे ज़ैनब सवार हुई। अब जैसे ही अमारी पे सवार होना था, अब ज़ैनब चलती जाती है, कभी अब्बास को पुकारती है, कभी अली अकबर को पुकारती है। न जाने कौन सा खानदान था कि पूरे खानदान का आज चहलुम है, पूरे खानदान का एक साथ मातम है। अभी यहाँ पे हुआ ज़ैनब, ये जैसी ज़ैनब की हमारी एक पत्थर के ऊपर आके रुकी। अब ज़ैनब ने आवाज दी है, मेरे बाजाए हुसैन, तुम कहाँ हो? मुझे मेरा बाजाया हुसैन दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे ये कहना था, पत्थर के नीचे से आवाज आई, ऐ ज़ैनब नीचे तो मुड़ के देखो, तुम्हारा गरीब भाई पत्थरों के नीचे दबा हुआ है। अब जैसे ये ज़ैनब ने सुना, जैसे अब्बास घोड़े से गिरे, ज़ैनब ऊंट की पुष्ट से गिरी, दोनों हाथ बंधे हुए थे, मुंह के बल रुखसारों के बल ज़ैनब गिरी खा के करबला पे। अब कोहनियों के सहारे हुसैन की लाश पे पहुंची, कहने लगी हाय रे मेरा गरीब भाई हुसैन, कैसे गुर्बत पे रुखसत हुआ था, आज क्या हालत है मेरे भाई हुसैन की। अब यहाँ पे ये बताइए हुसैन पे बस एक जुमले मसाइल और मजलिस तमाम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बताइए कि हुसैन गरीब पे न जाने कितने मुश्किल वक्त पड़े। अकबर के सीने से बर्छी निकालना, असगर के गले से तीर निकालना, न जाने कितने अब्बास के बाजुओं को उठाना, बहुत गम के पहाड़ टूटे। लेकिन हुसैन पे वो गम के पहाड़ बहुत थे कि जब हुसैन जो है, हुसैन जब रुखसत हो रहे हैं अहले हरम से, तारीख लिखती है हुसैन की 3 रुखसतियाँ हैं, अहले बैत से 3 रुखसतियाँ हैं। हुसैन बस मैं 3 रुखसतियाँ पढ़ रहा हूँ, फिर मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूँ, बस आप सुनते जाइएगा, ज़हरा को पुरसा देते जाइएगा। अब जैसे ही हुसैन हो गया, हुसैन ने अली असगर को आगे पुश्ते खैमा पे दफन करा। अब हुसैन आए, हुसैन आने के बाद आए सैयद सज्जाद खैमे में, आने के बाद सैयद सज्जाद खैमे का पर्दा हटाया। जैसे ही हटाना था, ज़ैनब ने सज्जाद का शाना हिलाया, कहा सज्जाद आंखें खोल दे, तेरा गरीब बाबा आया है। सज्जाद ने गश के मारे आंख न खोली। सज्जाद ताजी में उठ के बैठने के लिए असा का सहारा लेने लगे। हुसैन कहने के सज्जाद बैठने की जरूरत नहीं है, लेट जाओ, तुम अभी बीमार हो, इतना कहना था। ज़ैनब कहने लगी सज्जाद आंखें तो खोलो, अपने बाबा की हालत तो देखो। अब जैसे ही हुसैन सज्जाद ने आंखों को खोला, देखा हुसैन के पूरे चेहरे पे खून लगा हुआ है, ज़ख्मी बाबा सामने खड़ा है। अब जैसे ही ये सुन देखा, सैयद सज्जाद ने रो के कहा बाबा मेरा चचा अब्बास कहाँ गया, मेरा भैया अली अकबर कहाँ गया। हुसैन कहने लगे सज्जाद सब कत्ल हो गए हैं, सब राह खुदा में कुर्बान हो गए हैं। अब यहाँ इस काफिले में या तो तुम एक मर्द हो या मैं हूँ। अब सज्जाद मैं इस पूरे काफिले को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। सज्जाद अब न जाने क्या क्या बातें हुई बाप और बेटे में, कुछ ऐसी वसीयतें हैं जिसे इमाम और इमाम के दरमियान में रहती हैं, कुछ वसीयतें हैं जो आपको पता है, उनको मैं नहीं दोहरा रहा हूँ। हुसैन रुखसत हुए सैयद सज्जाद से, हुसैन फिर खैमा के बाहर आए। हुसैन जैसे ही खैमे के बाहर आए, आने के बाद कहा अस्सलाम अलैका या ज़ैनब अल कुबरा, ऐ बहन ज़ैनब तुम पे सलाम हो। ज़ैनब ने अंदर से आवाज दी, कहे भैया हुसैन अब ये वक्त आ गया है कि बहन को खैमे के बाहर से सलाम करोगे। अब जैसे ये कहना था, हुसैन कहने लगे ज़ैनब पहले मुझे ये बताओ कि कहीं खैमे में तुम्हारे अलावा कोई है तो नहीं। कहने लगे भैया कोई नहीं है। कहने लगे हुसैन कहने लगे ज़ैनब मेरी पेशानी पे तीर लगा है, ये ख्याल रखना खैमे में सकीना ना हो तो मेरी पेशानी पे तीर देख के यही मर जाएगी। ज़ैनब ने कहा बीबियों से कि खैमा खाली कर दो, मेरा भाई मुझसे अकेले में मिलने को आ रहा है। अब जैसे ये कहा सारी बीबियों ने खैमा खाली करा, ज़ैनब बैठी है। ज़ैनब ने कहा आओ हुसैन अंदर आओ। अब जैसे ये कहा हुसैन अंदर आए, ज़ैनब ने हुसैन की पेशानी को देखा हुसैन की पेशानी पे तीर लगा था। हुसैन ने फौरन ज़ैनब ने तीर में अपना हाथ फंसाया, फौरन या अली मदद कह के तीर निकाला। हुसैन ने ज़ैनब को गले से लगाया, कहने लगा हाय रे ज़ैनब तुम्हारी कुर्बान, कभी हसन के जनाजे से तीर निकाले, कभी हुसैन की पेशानी से तीर निकाले। अब जैसे ही कहा हुसैन ने गिरिया मातम करना
क्या अजब जोड़ी है बाप और बेटी। अगर बाप का जुलूम है तो बेटी के दसवें का भी मातम है, मीर सफर को बेटी का भी दसवां है, तो बीवी के भी मसाइब के जुमले सुनिए। फिर मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हुसैन रुखसत होके आए, सुलझना पे सवार हुए और जैसे पढ़ना चाहते हैं सुलझना पढ़ नहीं रहा है, बेचारा बेजुबान जानवर था, कैसे पढ़ता। अब हुसैन कहने लगे ऐ अपने बाबा, अब तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, ये तेरी आखिरी सवारी है, तेरी आखिरी सवारी है, बस मुझे ये कर, मुझे मैदान तक पहुंचा दे, बस वही मेरी मंजिल है। वो तो सकता नहीं था। सुलझना ने अपना सर नीचे करा, हुसैन ने नीचे देखा घोड़े की टापों से 4 साल की यतीम सकीना लिपटी हुई है, बार बार कह रही है सुलझना मत ले जा मेरे बाबा को, अब तक जो गया है कभी लौट के वापस नहीं आया है। हुसैन उतरे, हुसैन जैसी उतरे, हुसैन कह लगे सकीना मुझे जाना है, जो मैंने बचपने में वादा करा था उसको निभाना है, मुझे जाने दो। सकीना कह रही बाबा अब आप जा रहे हैं, मैं जानती हूँ आप लौट के वापस नहीं आएंगे, बाबा मुझे आखिरी बार अपने सीने पर सुला लिए। अब जैसे ये कहना था हुसैन खा के करबला पे सो लेटे, कहा सकीना आजा मेरे सीने पे। सकीना हुसैन के सीने पे लेटी, हुसैन ने बस एक जुमला कहा, उस पे मैं अपनी मंजिल को तमाम कर रहा हूँ। हुसैन कहने लगे सकीना आज असरे आज शबे शामे गरीबा में तुम्हारी माँ जहाँ कहे वहाँ तो जाना, ये जिद ना करना कि मुझे बाबा का सीना चाहिए है, तुम्हें बाबा का सीना नहीं मिलेगा। सकीना कहने लगी बाबा ऐसा क्यों है, मुझे आपका सीना क्यों नहीं मिलेगा। हुसैन कहने लगे सकीना शामे गरीबा तक तुम्हारे बाबा का सीना तीरों से छलनी हो